Hello students of class 7, welcome back in chapter 4 part 2, that is heat. So in this video we'll discuss about the next topics, that is clinical thermometer. Recall when you or somebody in your family had fever, the doctor measured temperature by placing a thermometer under your tongue. This type of thermometer is called a clinical thermometer or doctor's thermometer. A thermometer which measures our body temperature is called a clinical thermometer. Simple sa word there, clinical means the thermometer used by the doctors is known as clinical thermometer. So this is the clinical thermometer. So construction हम पढ़ते हैं इसके अंदर. It is a specially designed thermometer which is marked from 35 degree Celsius to 43 degree Celsius. जैसे कि हम normal marking दे रखी 35 to 42. So it is because the temperature of human body does not fall below 35 degrees centigrade, nor does it rise above 43 degrees centigrade. If the temperature falls or rise above or below these limits, death occurs. है ना. इस वजह से इसकी जो रीडिंग्स है वो कहाँ से कहाँ लिखी गई, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेल्सियस तक रखी गई है. कहा कि ह्यूमन बींग का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा, 42 डिग्री से 43 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा. अगर नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो फिर डेथ हो सकती है. जैसे कि कंस्ट्रक्शन में कहा गया है, दिस एरिया इज नॉन एज बल्ब, जहाँ पे मरकरी रहेगी, एंड दिस इज द कैपिलरी ट्यूब जहाँ मरकरी अपनी रीडिंग शो करेगी, है ना. 37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कि हम मानते हैं नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है ये, है ना. एंड दिस इज द स्टीम जो क्या करती हो, कैपिलरी ट्यूब को प्रोटेक्ट करती हो. तो इट कंसिस्ट, हमें कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या कंसिस्ट करती है वो. लार्ज बल्ब मेड अप ऑफ थिन ग्लास टू विच इट अटैच्ड अ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब. द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोवाइडेड विथ अ kink or constriction shown in the figure. The kink allows the mercury, है ना, ये रहा kink आपको दिख रहा है अंदर, जिसे कैपिलरी ट्यूब कह रहे हैं. Allows the mercury to move into the capillary tube when the thermometer is placed in the mouth cavity of the patient, but does not allow it to flow back into the bulb. When the thermometer is taken out of the mouth of the patient, does it help to read the temperature of patient. मीन्स जो किंक है वो क्या करता है, मरकरी को वापस नीचे गिरने नहीं देता जल्दी से, जैसा कि पेशेंट के टंग के नीचे रखते हैं. जितना उसका टेम्परेचर होगा उस हिसाब से मरकरी क्या करेगी, रीडिंग शो करेगी. But does not allow to flow back into the bulb. When the thermometer is taken out of the mouth of the patient, does it help to read the temperature of the patient? When the thermometer is taken out his mouth, the mercury can be brought back in the bulb by jerking the thermometer. एक हल्का सा जर्क लगाते हैं हाथ में पकड़ के, जर्क लगाने से वो मरकरी वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है. द कैपिलरी ट्यूब इज सराउंडेड बाय थिक ट्रायंगुलर ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टीम. इसे स्टीम कहा गया है, जो क्या कर रही हो, कैपिलरी ट्यूब को प्रोटेक्ट करके रखती हो. द ट्रायंगुलर स्टेम helps in magnifying the thin mercury thread in capillary in the form of a broad band and hence help in reading the temperature accurately. और जो स्टीम ही क्या करती है, जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर मरकरी मूव कर रही हो उसे ब्रॉड करके दिखाती है ना, ऐसे बड़े साइज में दिखाती है ताकि क्या वो रीडिंग ईजिली ले सकें. The stem is marked from 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. A red line is marked at 37 degrees centigrade. Q because it's a normal temperature of healthy human person. Normal temperature रहता है हमारे बॉडी का, that is 37 degree centigrade. So how to handle the clinical thermometers? First of all, wash the thermometer with an antiseptic solutions or alcohol or water. Let it dry in the ear. कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, डेटॉल है, सैवलॉन हो, या फिर नॉर्मल हम वाटर से उसे वॉश करके थोड़ा सा सुखाएं. होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड रीड द लेवल ऑफ द मरकरी. पहले उसे टॉप एंड से हैंडल किया जाए, मरकरी रीडिंग देखें कहाँ पे है मरकरी अभी. इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज द टेम्परेचर एस थर्मोमीटर एस. 35 डिग्री सेंटीग्रेड से मरकरी नीचे गिर जानी चाहिए, उसका हम थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं. If the level of mercury is above 35 degrees Celsius, bring it down by giving a few jerks to the thermometer.
This will force the mercury level to move down. If mercury level 35 डिग्री से ऊपर शो कर रहा हो तो उसे जर्क दे पकड़ के, ताकि क्या हो, मरकरी वापस 35 डिग्री से नीचे आ जाए. Place the thermometer bulb under the tongue of the person for a minute. Do not talk with the person. It is because if the person having thermometer talks, he can break the thermometer, releasing mercury, which is poisonous. You can also place the thermometer under the armpit of the person. Armpit में भी हम रख सकते हैं. और थर्मोमीटर को पेशेंट की टंग के नीचे रखना है कुछ देर के लिए. उसे बात करने नहीं देनी है. कहा कि अगर बात करते हुए तक थर्मोमीटर टूट गया तो उसकी मर्करी रिलीज हो जाएगी, जो कि क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है. सो दिस वर द पॉइंट्स जैसे हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को हैंडल करना है. नेक्स्ट इज रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ और आर्म पिट ऑफ द पर्सन एंड रीड इट कीपिंग योर लाइन ऑफ साइट विद द मर्करी लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब. यानी अपनी जो नज़र है वो किसके लेवल पे आनी चाहिए, थर्मोमीटर के लेवल पे रख के हमें उसकी रीडिंग चेक करनी है. हैंडल थर्मोमीटर विथ केयर फ्रॉम द एंड अवे फ्रॉम द बल्ब. डू नॉट हैंडल फ्रॉम द साइड ऑफ द बल्ब. जिस साइड बल्ब है थर्मोमीटर वहाँ से ना पकड़े, उसके दूसरे एंड से उस बल्ब को पकड़ के हमें रीडिंग चेक करनी है. इसके बाद री-वॉश करना है थर्मोमीटर को कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से. एंड डू नॉट स्टेरिलाइज थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब. लेकिन हमें बॉइलिंग वाटर से उसे वॉश नहीं करना है. अगर बॉइलिंग वाटर से वॉश करते हो तो क्या होगा, बल्ब की टूटने का डर रहेगा, यानी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. स्टोर द थर्मोमीटर सेफली इन सम प्लेस वेयर द टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव द 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ऐसी जगह रखा जाए ताकि क्या हो, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रहे, वो ऊपर ना आए. वन इम्पॉर्टेंट note is given here that India adopted Celsius scales for measuring temperature before the adaptation of the scale Fahrenheit scale was used. है ना, 3 चीज़ आ रही है, डिग्री सेल्सियस, एक आती है फ़ारेनहाइट और एक चलती है केल्विन. ये तो लेबॉर्ट्रीज़ में अक्सर हम टेम्परेचर को इसी में यूज़ लेते हैं. नॉर्मल लाइफ के लिए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. तो पहले सेल्सियस से पहले फ़ारेनहाइट चलती थी. तो फ़ारेनहाइट की रेंज कहाँ से कहाँ थी, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो हमारा अभी 37 डिग्री नॉर्मल जो शो कर रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर उसमें कितना शो करेगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड कैन कॉज एक्सीडेंट्स. दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी. अब आजकल डिजिटल चल रहे हैं जो क्या चलते हैं, चलाते हैं स्केल चलाते हैं, रीडिंग्स चलती है इसके अंदर, यानी मर्करी की ज़रूरत नहीं होती है. सो डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर्स. एक जो लैबोरेटरी में यूज़ हो रहा है और एक जो क्लिनिकल में यूज़ हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी साइज़ में, लैबोरेटरी वाला मच लॉन्गर, काफ़ी बड़ा होगा, क्लिनिकल शॉर्टर होगा. टेम्परेचर रेंज कहाँ से चलेगी, लैबोरेटरी के अंदर -10 to -100 डिग्री और शॉर्टर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं. पोजीशन ऑफ टाइम ऑफ रीडिंग, बल्ब रिमेन इन कॉन्टैक्ट्स. लैबोरेटरी बल्ब रिमेन कॉन्टैक्ट रहेगा तभी रीडिंग. किसी थर्मोमीटर को किसी सब्सटेंस के अंदर अगर रखा गया लैबोरेटरी में तो उसकी रीडिंग उसी समय पढ़नी पड़ेगी. लेकिन क्लिनिकल में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को या तो टंग के नीचे रखा वहाँ से हटाओ, या आर्म पिट के नीचे रखा तो वहाँ से हटाओ, हटा के फिर क्या की जाती है, रीडिंग देखी जाती है. डिज़ाइन कैसे होगी बॉडी की, थर्मोमीटर की सिंपल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा. और इसको किससे डिज़ाइन किया गया है, बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू गिव मैग्नीफाइंग इफेक्ट टू द मर्करी कॉलम ओनली एट अ सर्टेन एंगल. और इसको पतला और ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जब आप उसे देखें उस एंगल से तो आपको मैग्नीफाइड यानी बड़ी डिजिट्स आपको नज़र आएंगी. डिज़ाइन ऑफ कैपलरी, स्ट्रेट कैपलरी होती है. इसके अंदर क्या होती है, कैपलरी विथ अ किंक, है ना, विच इज़ कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन, जो क्या करता हो, मर्करी को ईजिली फ्लो करवाता है, किंग का बनाता है. इसमें सिर्फ एक स्ट्रेट कैपलरी ही होती है. तो मेन डिफरेंस ये रहा है लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो नेक्स्ट इज हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस. हीट कैसे ट्रांसमिट हो रही है. इमेजिन योर टीचर हैज़ ए बास्केट फुल ऑफ टॉफ़ी which he intends to distribute among all of you in the class. He has three options.
Option 1 is that he gives a toffee to the first boy and tell him to pass it on to the next boy, and then the next boy passes on further. In this way, each one of you will receive a toffee without actually moving from your place. Option 2 is that he asks you to line up and come to the table one by one, and after receiving your share, move back to your seat. Option 3 is that he just throws the toffees towards you without any movement on your part. Much the same way the heat energy travels from a hot body to a cold body. सिंपल सा लॉजिक का कि 3 ऑप्शंस बताए गए. पहला ही बताया गया है कि टीचर टॉफ़ी बांटना चाह रहा हो. पहला ऑप्शन ये बताया कि पहले किसी एक स्टूडेंट को दे दें, वो दूसरे को पास करेगा, सेकंड थर्ड को पास करेगा, थर्ड फोर्थ को पास करेगा, फोर्थ फिफ्थ को पास करेगा, एंड सो ऑन. इस तरह से सबको क्या मिलेगी, टॉफ़ी मिल जाएगी. सेकंड ऑप्शन ये है कि वो लाइन बाय लाइन सभी स्टूडेंट्स को क्या करें, अपनी डेस्क पे बुलाएं और एक एक डेस्क पे लेता जाए और वापस अपनी सीट पे बैठता जाए. थर्ड ऑप्शन ये बताया गया है कि वो टॉफ़ी या तो थ्रो करें हर एक स्टूडेंट के पास. तो इसी तरह से हीट क्या करती है, ट्रैवल करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दैट इज़ फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू होल्ड अ स्टील स्पून ऑन अ ग्लास फ्रेम, इट विल फर्स्टली गेट वार्म, then hot, and finally so hot. Then you will not able to hold it. The heat energy has been transmitted through the spoon without the actual movement of the particles of the spoon. Such a mode of transmission of heat is called conductions. It resembles the options 1 of distribution of topics. एक के बाद एक जो पास कर रहे थे उसी को कर रहा है कि अगर आप किसी बर्तन को गर्म करते हुए जा रहे हो, जब वो गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, वो हीट आपके हैंडल तक आएगी, फिर आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे. Let's take another example. Take a beaker and in it put some bits of filter paper soaked in water. Fill half of the beaker with water. Place the beaker on the tripod stand and heat it with a split lamp. It seems that soaked filter paper bit rise to the top of the water, moving sideways and come down again. Also, the water gets heated. Such a mode of transmission of heat is called convections. एक था conductions जो ट्रांसफर, एक है convections. इसमें कहा कि आप फिल्टर पेपर लें, फिल्टर पेपर को क्या करें, पानी पे पहले भिगोएं, शॉक करें उसे, और एक बर्तन लें, उसमें वापस पानी डालें और उस फिल्टर पेपर को उसमें डाल दें. और सिंपल, अगर हमें ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं होती घर पे, स्प्लिट लैम्प भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसे गैस पे रख देना है. तो जैसे हम उसे हीट करते जा रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि जो फिल्टर पेपर्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर वापस डाउन हो रहे हैं. तो इस तरह का जो मोड होता है हीट का, कि हीट में आ रहा है, फिल्टर पेपर हीट एब्जॉर्व कर रहा है, फिर रिलीज़ कर रहा है, फिर वापस एब्जॉर्व कर रहा है, मूवमेंट कर रहा हो, नॉन एज कॉन्वेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट, यू हैव स्विच्ड ऑन योर रूम हीटर, यू फील वार्म while sitting in front of it. However, if you place a cardboard between yourself and the heater, you do not feel the heat. It means the heat energy directly reaches you without heating the air. Much the same way as the toffee directly reaches you in the third options. Such a mode of transmission of heat is called radiation. जैसे कि बता रहे हैं कि सन से, स्पेस से होते हुए रेडिएशन हमारी अर्थ तक आती है, सन की रेज आ रही हैं. तो ये कहा कि अगर हीटर के पास हम बैठ रहे हैं तो हीटर की क्या आ रही है, डायरेक्ट रेज हमारे पास आ रही है. अगर हम उसके बीच में कोई कार्डबोर्ड रख दें तो वो हीट हमारे पास नहीं आएगी डायरेक्टली, वो बस क्या करेगी, हमारे आसपास की एयर को क्या करेगी, गर्म करेगी. तो 3 मोड ऑफ बताया गया है. हाउ डज हीट ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस. हीट ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द 3 मोड्स. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शंस, एंड थर्ड इज radiations. So further we will discuss about these 3 topics. So we will see you all in part 3.